Hello students, good morning. Today we are going to start the next exercise 13.6 and this exercise is specially based on the volume of a cylinder. So, especially cylindrical forms, some different equipment will be given in this exercise and application part of the volume of cylinder we will discuss. So let we given one cylinder is in this format. This is the given cylinder whose base is also circular and top is also circular. Then let the radius of its base be the r, height be the h. Then the volume of cylinder is given by pi r square h. How कहां से आया ये फॉर्मूला? देखिए वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम इज जनरली इक्वल्स टू एरिया इनटू हाइट. Okay, so if a cylinder is given whose base radius is r, then the area of its base will be pi r square because base of the cylinder is always circular, and if the height be the h, then this area will be multiplied by the height. So pi r square h be the volume of a cylinder. Let us suppose this A, O, B, C, D, E be the any cylinder with center base is O and top is D. Then if we fill any liquid in this cylindrical part, then the liquid contained by this cylinder will be equals to the volume of the cylinder. Now, on the basis of this formula, we will discuss the question of this exercise 13.6. So let us see the question first. Is the circumference of the base of the cylindrical vessels? कोई एक cylindrical vessels given है, उस cylindrical vessels का बेस का circumference का मतलब क्या है? अगर let us suppose this is any cylindrical vessels with height h and radius of its base is r, then circumference of the base of cylindrical vessels, that is pi r square. circumference किसके बराबर होता है? circumference होता है 2 pi r के. किसके बराबर होता है? 2 pi r. तो circumference is equals to 132. that is 2 pi r is equals to 132. This is the given. Second thing, and its height क्या है? इस सिलेंडर की जो हाइट है h है वो 25 सेंटीमीटर है. सो सेकंड थिंग व्हाट इज गिवन, h इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर. नाउ इफ द सर्कमफ्रेंस इज गिवन that 2 pi r is equals to 132, and if the area of base is given then pi r square. So here circumference is given, so 2 pi r is equals to 132. Okay, height कितना दे रखा है आपको? Height is given 25 centimeter. So question ये पूछ रहा है कि how many liter of water can it hold? ऐसे cylindrical vessels में कितने लीटर पानी आएगा? तो रेडियस किसके बराबर हो जाएगी? इसकी रेडियस विल बी इक्वल्स टू 132 अपॉन 2 पाई. 2 पाई मींस पाई can be substituted as 132 as it is 2 into 22 by 7. So सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं. 6 2 जा 12 and 6 2 जा 12, तो 66 टाइम and 22 3 जा
66. So radius will be equals to 21 centimeter. Now height is given 25 centimeter and radius is 21 centimeter of the cylindrical vessel. So its volume will be equals to pi r square h. Now what is pi r square? Pi r square is area of its base. So simply अपन क्या करेंगे, pi 22/7, radius is given 21, so 21 into 21 into height is 25 upon 1. तो 7 3 जा 21 and now it will be equals to 22 into 3 into 21 into 25 centimeter cube. This is the volume. अब ये कह रहा है कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर है तो टोटल कितना लीटर होगा? तो सबसे पहले अपने को मल्टीप्लाई करना है इसको 22 3 जा 66 and 21 into 25, तो 66 into 21 into 25, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए किसके बराबर आ जाएगा, 66 into 25 बन जा 25, 25 2 जा 50 and 2 52, तो 525। अब 525 को किससे मल्टीप्लाई करना है अपने को? 525 को 66 से, तो 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12 and 3, 15 का 5 कैरी 1, 6 5 जा 30 and 1 31. Okay, so 6 5 1 3, इसको ऐड करेंगे तो 6 11 6 and 7 then 4 and 3, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका, रिक्वायर्ड वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 34,716 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ 1000 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर? 1 लीटर, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 34,716 upon 1000 liter, that is 34.716 liter will be the its volume. So hope the question is clear. So let us see the next question. चलिए next question है, the inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of pipe. Mass of pipe, that's very important. If 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 gram, 0.6 gram, तो देखिए क्या क्वेश्चन दे रखा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है। सिलिंड्रिकल वुडन पाइप का कंसीडरेशन कैसे करेंगे? ये सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है और इस सिलिंड्रिकल वुडन पाइप की जो वॉल्स हैं, ये वॉल्स हैं, ये आपका इनर डायमीटर है और ये आपका आउटर डायमीटर। समझ में आया? देखिए ये सिलिंड्रिकल वेसल, लेट अस सपोज A B C D B द सिलिंड्रिकल वेसल्स एंड टॉप का सेंटर O डेश है, बॉटम का O है, तो O डेश से लेकर के इनर तक का क्या दे रखा है? डायमीटर दे रखा है। डायमीटर का मतलब इनर टू इनर कितना है? 24 एंड आउटर टू आउटर कितना है? 28 एंड हाइट कितना दे रखा है? h बराबर 35। तो हम क्या करेंगे, एक बार इनर रेडियस को लेकर के इसका वॉल्यूम निकालेंगे, एक बार आउटर रेडियस को लेकर के वॉल्यूम निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस कंसीडर व्हाट इज given that क्या दे रखा है बेटी? given that the inner diameter of a cylindrical wooden pipe R बराबर दे रखा, इनर डायमीटर
24 तो इनर डायमीटर d इज इक्वल टू कितना है 24 सेंटीमीटर, implies that रेडियस कितनी हो जाएगी 24 अपॉन 2 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये इनर रेडियस है। ऐसे ही द आउटर डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप d इज गिवन कितना है 28 सेंटीमीटर। तो implies that outer radius उसको हम कैपिटल R मान लेते हैं तो 28 by 2 that is 14 सेंटीमीटर। तो इनर रेडियस आपके पास में 12 सेंटीमीटर आ रही है, आउटर रेडियस आपकी 14 सेंटीमीटर आ रही है। ओके, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है बेटे, हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप is that is h बराबर कितना दे रखा है, h is given 35 सेंटीमीटर। नाउ हमें निकालना क्या है कि इनर रेडियस इसकी 12 हो गई और आउटर रेडियस इसकी 14 सेंटीमीटर हो गई। अब इसका हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ वुड कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ वुड किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ वुड। बच्चों ध्यान से देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड का मतलब मैं क्या करूंगा, इस सिलिंड्रिकल वेसल्स का इनर डायमीटर निकालूंगा इनर रेडियस से और सिलिंड्रिकल वेसल्स का आउटर डायमीटर निकालूंगा 14 सेंटीमीटर रेडियस से। दोनों का डिफरेंस होगा तो केवल सिलिंड्रिकल वेसल्स का आउटर एजेस मतलब जो वुडन पार्ट है पाइप में जितना वुडन यूज्ड हुआ दैट विल बी कैलकुलेटेड। सो वॉल्यूम ऑफ वुडन पाइप किसके बराबर होगा, देखो कैपिटल पाई कैपिटल R स्क्वायर h, ये होगा आउटर वॉल्यूम, माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो इसमें क्या करेंगे, पाई h अपन कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर यूनिट क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, सो देखो पाई का मतलब 22/7, h का मतलब 35 इंटू कैपिटल R स्क्वायर का मतलब 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। अब 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर ये आपका वुडन का वॉल्यूम आएगा। तो इस वॉल्यूम का कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 22/7 इंटू 35 इंटू देखो 14 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, एक बार 14 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 14 प्लस 12 हो जाएगा आपका 26, एक बार हो जाएगा 14 माइनस 12 क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो 14 प्लस 12 तो 26 हो जाएगा, 14 माइनस 12 कितना हो जाएगा 2, तो दिस इज 2। अब 7 से कितने बार कट जाएगा, 7 5 जा 35, सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 22 5 जा 110 into 26 2 जा 52, ठीक है, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब। अब 110 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 52 से, तो 52 को 11 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा देंगे, 11 2 जा 22 कैरी 2, 11 5 जा 55 and 2 57 0, तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम है किसका, वुड का। अब अपने को ये भी निकालना है कि उसका मास कितना होगा, तो implies that mass will be equal to 1 सेंटीमीटर क्यूब। यहां देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का जो मास है वो कितना है बेटे, 0.6 ग्राम है। तो अपने पास तो 5720 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 5720 into 0.6 ग्राम। यहां से पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में एक जीरो आएगा, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो 572 into 6, इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 7 जा 42 and 1 43 कैरी 4, 6 5 जा 30 and 4 34 ग्राम, ठीक है। अगर इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना तो ये कितना हो जाएगा, अगेन 3 4
32 किलोग्राम, क्योंकि 1000 से डिवाइड किया, तो फाइनली आंसर आपका ये आ गया। सो दिस इज द वॉल्यूम। एक बार वीडियो को थोड़ा सा जगह शॉर्ट होने से हमने इस तरीके से सॉल्व किया है, आप ध्यान रखिए। मैं फिर से बता देता हूं। सबसे पहले हम स्मॉल रेडियस निकालेंगे, मतलब इनर रेडियस, फिर आउटर रेडियस निकालेंगे, फिर हाइट दे रखा, फिर वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, मतलब आउटर रेडियस से वॉल्यूम, फिर इनर रेडियस से वॉल्यूम, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। वुड का जो वेट मास है वो 0.6 ग्राम है, तो अपन ने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। यहाँ पे पॉइंट हटाया, नीचे 0 से लिए 57200 कट गया, फिर 32 ग्राम टोटल वेट आया। इसको 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं तो यही आपका आंसर है। सो बेटे समझ में आया क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a soft drink is available in 2 pack। देखो हमारा जो एक्सरसाइज चल रहा है वो बेसिकली बेस्ड ऑन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में आपको इतना सा ध्यान रखना है कि पाई आर स्क्वायर एच, ये एकमात्र फॉर्मूला है। पाई 22/7 है, आर जो भी सिलिंड्रिकल वेसल्स है उसकी रेडियस है, एच उसकी हाइट है, बस इतना सा समझना। अब ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लैंग्वेज के हिसाब से थोड़ा लेंथी लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ें। A soft drink is available in 2 pack। मार्केट में चलते हैं बहुत प्रकार के आजकल ड्रिंक आते हैं, तो 2 प्रकार की कोई सॉफ्ट ड्रिंक है। सॉफ्ट ड्रिंक का मतलब समझते हैं, जो आजकल के कोका कोला है, स्प्राइट है, जो भी आप पीते हैं। ये जो सॉफ्ट ड्रिंक है ये 2 प्रकार के डिफरेंट पैक में अवेलेबल है, 2 पैक्स। हाँ, 2 पैक का मतलब गलत सेंस मत लेना, पैक भी लगाते हैं। देखो a tin can with a rectangular base। एक जो पहला सॉफ्ट ड्रिंक है वो किस फॉर्म में है? A tin with a rectangular base। रेक्टेंगुलर का बेस का मतलब जिसका L and B है। क्या है? L and B है, जिसका लेंथ एंड ब्रेथ है। अब उसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है और ब्रेथ उसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हाइट कितना दे रखा है? हाइट उसका 15 सेंटीमीटर है। तो इसको हम कैसे समझेंगे बेटे? यूं समझ ले कि ये एक इस प्रकार का फॉर्मेट है। ये एक आपका टिन है जिसका L कितना है बेटे? 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका 4 सेंटीमीटर और इसका हाइट कितना हो गया? हाइट है इसका, दिस हाइट इज 15 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या है? इसका फर्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक का देखो, L इज गिवन 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज गिवन 4 सेंटीमीटर एंड हाइट इज गिवन 15 सेंटीमीटर। Implies that volume of tin किसके बराबर हो जाएगा? L into B into H यूनिट क्यूब। तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया 5 into 4 into 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो 5 4 जा 20 into 15, 15 2 जा 30, तो 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये पहला जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका वॉल्यूम है। दूसरा क्या है? प्लास्टिक सिलेंडर। दूसरा जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है विथ सर्कुलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में है और वो सिलिंड्रिकल जो वेसल्स है उसका डायमीटर, सर्कुलर बेस का जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर, मतलब ये टोटल जो है डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट, इसका हाइट कितना दे रखा? h = 10 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा आपको? इसका डायमीटर दे रखा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया आपका? 7/2 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा h = 10 सेंटीमीटर।
अब आपको सिलेंडर है जिसका रेडियस पता है, हाइट पता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट ड्रिंक, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल सॉफ्ट ड्रिंक, जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट ड्रिंक है उसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, पाई आर स्क्वायर एच के। तो यहां से वैल्यू निकाल ले, पाई का मतलब कितना हुआ 22/7, आर कितना है बेटे 7/2 इनटू 7/2 इनटू हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 2 से 22 11 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 10 कितने बार हो गया 5 बार। तो क्या बचा आपका 11 इनटू 7 5 जा 35। आप देखिए तो 350 प्लस 3 सीधा 11 को 35 से का मतलब 10 से मल्टी, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाया करो, अगर यहाँ 11 की जगह 10 होता तो 350, अब 350 11 बार है तो 35 ऐड कर ले, तो 350 प्लस 35 क्या होगा 385, तो 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो आपका होम में जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक था उसका वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब है, और जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसका वॉल्यूम 385 है। तो ये कह रहा है कि which container has greater capacity and how much, कौन सा सॉफ्ट ड्रिंक है जिसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो यह दिख रहा है कि जो सिलिंड्रिकल है उसका ज्यादा है, तो अपन आंसर लिख देंगे नेक्स्ट की सिलिंड्रिकल जो आपका सॉफ्ट ड्रिंक है हैज ग्रेटर वॉल्यूम एंड हाउ मच, ग्रेटर वॉल्यूम एंड इज कितना है 385 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 85 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ज्यादा। ओके तो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, दो सॉफ्ट ड्रिंक है, पहला सॉफ्ट ड्रिंक है टिन शेप में तो उसका वॉल्यूम LBH हो जाएगा, दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक है जो सिलिंड्रिकल फॉर्म में उसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। दोनों का कैलकुलेशन करें, एक का वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा, दूसरे का 385। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि जो सिलिंड्रिकल वेसल्स है उसका वॉल्यूम ज्यादा है, और कितना ज्यादा है 385 minus 300 that is 85 सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है। तो क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया है, ध्यान से सुने, जो सिलेंडर होता है, लेट अस सपोज ये सिलेंडर है, ओके। हमने जब पहली एक्सरसाइज पढ़ी थी तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में हमने देखो टॉप का सरफेस एरिया पढ़ा पाई आर स्क्वायर, बॉटम का सरफेस एरिया पढ़ा पाई आर स्क्वायर, और जो लेटरल है मतलब जो सिलेंडर है, अगर माना कि कोई सिलिंड्रिकल पाइप ले लीजिए जो और टॉप से भी खुला हुआ बॉटम से भी खुला हुआ, अब मैं कहूंगी उसके आउटर सरफेस पे आपको कलर करना, तो कौन से पार्ट पे करोगे, हार्ड सरफेस पे करोगे। तो कार्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच, ओके। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया होगा। यहां कह रहा है कि लेटरल सरफेस को चाहे कार्ड सरफेस को लेटरल सरफेस बोलो चाहे सीएस बोलो, सीएस का मतलब कार्ड सरफेस एरिया। तो कार्ड सरफेस एरिया आपके को गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, गिवन दैट क्या दे रखा बेटे, हमें दे रखा है 2 पाई आर एच, ये है लेटरल सरफेस, ये कितना दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर 1। एंड इट्स हाइट, ऐसा सिलेंडर जिसका कर्ड सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर है, उसकी हाइट h बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, हाइट उसकी 5 सेंटीमीटर है। तब अपने को क्या कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस की रेडियस कितनी है, तो अपन यहाँ r की जगह 5 पुट अप कर देंगे तो 2 into, और क्या कह रहा है यूज 3.14, पाई की वैल्यू हमें ये यूज लेनी, तो 2 into
पाई 3.14 इंटू आर इंटू एच 5 है बराबर 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटे 94.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5 इंटू 3.14। देखो 2 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा 94.2 और नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 31.4 सेंटीमीटर ये स्क्वायर था और ये सेंटीमीटर हो गया। ओके तो 1 सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया। अब देखो सीधा सीधा देखो थोड़ा सा आईक्यू लगाओ 31.4 को 94.2 से डिवाइड करना तो ये पॉइंट से तो सीधा पॉइंट कट जाएगा। 314 है 3 3 जा 9 और 14 3 जा 42 तो ये सीधा सीधा देखो 3 बार कट रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाना तो रेडियस कितना आ गया 3 सेंटीमीटर बेस का रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर। अब सेकंड क्वेश्चन देखो फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा। तो बहुत प्यारा सवाल देखिए बहुत इजी हो गया। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा बताइए जल्दी से πr²h πr²h में सिंपल फॉर्मूले में पुट अप करना तो वॉल्यूम हो गया बेटे देखो पाई तो हो गया फिर से 3.14 इंटू आर स्क्वायर का मतलब 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3 और हाइट कितना है 5 तो 3 3 जा 9 9 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 3.14 इंटू 45 ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर ली सेंटीमीटर क्यूब यही आपका वॉल्यूम है किसका सिलेंडर का। सो दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। It cost ₹2200 to paint the inner curved surface again 2πrh of a cylindrical vessels 10 मीटर deep। एक सिलेंड्रिकल वेसल्स है ये सिलेंड्रिकल वेसल्स है। इस सिलेंड्रिकल वेसल्स की जो डेप्थ है डेप्थ का मतलब हाइट एक ही बात है h बराबर दे रखा 10 मीटर 10 मीटर डेप्थ है भैया कूद नहीं जाना उसके अंदर डूब जाओगे 10 मीटर है। एक आदमी लगभग 2 मीटर का होता है तो मेरे से 5 गुना गहरा। चले ऐसे सिलिंड्रिकल जो वेसल्स हैं उसको इनर पार्ट को हम क्या कर रहे हैं पेंट कर रहे हैं। तो पेंटिंग की जो कॉस्ट आ रही है वो 2200 रुपए है 2200 रुपीज कॉस्ट है और रेट कितनी है 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। तो देखो कॉस्ट ऑफ थोड़ा ध्यान से सुनिए क्वेश्चन इतना इजी भी नहीं है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो टोटल कॉस्ट कितना है बेटे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑन इनर सरफेस कितना दे रखा ₹2200। देखो 2200 रुपए टोटल कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर एरिया इक्वल टू कितना है ₹20 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो कार्ड सरफेस एरिया कितना होगा टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर पेंट। तो टोटल कॉस्ट तो 2200 रुपए थी और 20 रुपए पर मीटर स्क्वायर था तो 0 से 0 कट गया और 220 से 220 जो है 2 से 110 इसका मतलब 110 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया किसका इनर कार्ड सरफेस। अब इनर कार्ड सरफेस अपने पास में 110 मीटर स्क्वायर आ गया ये समझ में आया। अरे भाई देखो 2200 रुपीस टोटल कॉस्ट दी इनर वाले पार्ट पे यहां उसने पेंट किया। ओके यहां जो पेंट किया ऐसे भी किया होगा उसने। अरे भाई कहां जा रहे हो तुम यहां हो जाओ कहां जाना तुम। यहां जो ये है इनर
So the inner cut surface area 2 pi r h r कितना है देखो टोटल कट सरफेस एरिया कितना हो गया 110 सेंटीमीटर स्क्वायर तो ये किसके बराबर हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। इसमें अपने को क्या निकालना रेडियस निकालना। फर्स्ट क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया था 110 मीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन रेडियस ऑफ बेस यहां से 2 pi r h की वैल्यू 110 पुट अप करेंगे x दे रखा 5 तो r बराबर आ जाएगा 110 अपॉन 2 into 22 by 7 तो 7 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा h आ जाएगा नीचे कितना 5। अब देखिए 22 से 110 कितना हो जाएगा 22 5 जा 110 और 5 से ये 5 कट गया तो रेडियस कितनी आई बेटे 7/2 मीटर क्योंकि एरिया मीटर में है तो ये 7/2 मीटर रेडियस आ गई। कैपेसिटी ऑफ वेसल्स का मतलब ये दूसरा फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था ये सेकंड ये हो गया। थर्ड आपको कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स कितना होगा सिलिंड्रिकल वेसल ये किसके बराबर होगा ये होगा पाई r स्क्वायर h के तो पाई देखो 22/7 r कितना 7/2 into 5 तो ये 7 से 7 कट गया यहां से ये 11 हो जाएगा। आप देखिए ये कितना बन गया बेटे 11 तो फाइनली आंसर बचेगा आपका 11 into 35 divided by 2 that is 385 divided by 2 meter cube. This will be the 385 divided by 2 meter cube be the capacity of the vessels or the volume. तो समझ में आया क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6th क्वेश्चन the capacity of a closed cylindrical vessels of height 1 meter एक closed cylindrical vessels है उसकी हाइट 1 मीटर है। चलिए ये closed cylindrical vessels है ये closed इसका हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टॉप एंड सेंटर ऑफ बॉटम हाइट कितना दे रखा है 1 मीटर ठीक है। उसकी कैपेसिटी दे रखी है 15.4 लीटर सो द कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल कितना दे रखा है बेटे 15.4 लीटर ठीक है। 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई करूं 15.4 into 1000 सेंटीमीटर क्यूब तो ये आ जाएगा आपका 15400 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया इसका वॉल्यूम क्योंकि लीटर को अपन ने सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया। ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। इस सिलिंड्रिकल वेसल्स को बनाने में कितना क्या चाहिए हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट मतलब ये तो इसका सरफेस एरिया पूछ लिया तो देखिए वॉल्यूम से अपन क्या निकालेंगे सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे तो देखो यहाँ h बराबर 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर हो गया ठीक है। 100 सेंटीमीटर से अपन क्या करेंगे क्योंकि ये तो कैपेसिटी है तो कैपेसिटी का मतलब इंप्लाइज दैट क्या है पाई r स्क्वायर h किसके बराबर है पाई r स्क्वायर जो h है वो दे रखा आपको 1/400 है। यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे h की वैल्यू h दे रखा है तो r की आएगी वैल्यू तो यहां से r की जो वैल्यू आएगी दैट इज पाई r स्क्वायर h कितना है तो r स्क्वायर कितना आएगा r स्क्वायर विल बी 1/400 अपॉन पाई h। तो इसको आगे सोल्व करते हैं देखिए 154
00 अपॉन 22/7 इंटू 100, तो ये 100 से तो 2 जीरो कट गया, ठीक है। और ये 7 यहां से रिवर्स होके ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 जा, ये कितना हो जाएगा 154। इसका मतलब आपके पास r स्क्वायर बराबर आया 49, तो r बराबर आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देखिए इस सिलिंड्रिकल वेसल्स का जो रेडियस है r बराबर कितना आ रहा है बेटे 7 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या निकालना, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर मेटल शीट वुड बी यूज्ड टू मेक इट, मतलब अपने को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। नाउ the metal sheet required to make, क्या बना रहे हैं आप, सिलिंड्रिकल वेसल्स बनाने में कितना मेटल शीट यूज होगा। देखो एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया में मेटल लगेगा, एक टॉप और बॉटम में लगेगा, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल्स कितना होगा 2 pi r into r plus h। क्या सेंटीमीटर में आ रहा है, तो अपन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट अप कर ले, तो ये हो जाएगा 2 pi 22/7 into r कितना आया 7 into r plus h। r plus h का मतलब r 7 सेंटीमीटर है और h 100, तो 107 हो गया। अब देखिए इस 7 से ये 7 कट गया, 22 जा 44 into 107 सेंटीमीटर क्यूब। इतना मेटल शीट आपको इस प्रकार के सिलिंड्रिकल वेसल्स बनाने में यूज आएगा। तो एक बार फिर से बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन है। अगर मेरे जैसा अगर सीधा टीचर है कोई है, अरे सीधे का मतलब तुम ऐसा मत करो, सीधे का मतलब जो बच्चों का ध्यान रखने वाला, तो पहले बता देता है कि भैया ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हाँ, तो हमें क्या ध्यान रखना बेटे कि एक सिलिंड्रिकल वेसल्स है, उसकी हाइट अपने को 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और उसका वॉल्यूम दे रखा है लीटर में। तो सबसे पहले लिखा देखो कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर कितना है 15.4 लीटर। अब 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, कितना 1 लीटर। तो 15.4 लीटर को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो ये देखो कैलकुलेशन में भी ध्यान रखो, ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 154 into 100 that is 15400, ये सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या आ गया बेटे, ये आ गया वॉल्यूम ऑफ दैट सिलिंड्रिकल वेसल। अब वॉल्यूम आ गया, मतलब वॉल्यूम क्या होता है पाई r स्क्वायर h। अब पाई r स्क्वायर h में मुझे r स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये r स्क्वायर है, क्या है r स्क्वायर। r स्क्वायर किसके बराबर 154 अपॉन पाई h, ये पाई भी नीचे चला गया, h भी नीचे, पाई की वैल्यू 22/7 और h की वैल्यू तो 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर था ना हाइट, तो उसको सेंटीमीटर में लिख दिया आपने 100। तो देखो 22 से ये 7 बार कट गया, और ये डिनोमिनेटर में 7 था, ये को 22/7, ये 7 ऊपर चला गया, तो 7 7 जा 49, मतलब r स्क्वायर किसके बराबर आया आपके 49, तो r बराबर क्या होगा √49 मतलब 7 सेंटीमीटर। तो आपके पास क्या आ गया बेटे कि जो रेडियस है इस सिलेंडर की वो 7 सेंटीमीटर आ गई। अब यहां से क्वेश्चन टर्न हो रहा है, क्योंकि जनरली बच्चे क्या होते हैं जब वॉल्यूम का क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वॉल्यूम पे ही कोई एप्लीकेशन होगी नहीं। उसने रिवर्स पूछ लिया कि एक सिलिंड्रिकल वेसल्स है जिसमें इतना पानी भरा हुआ है और जिसकी हाइट इतनी है, भाई ऐसे वेसल्स को बनाने में कितना मेटल यूज हुआ होगा। तो भाई वो पानी भरने से पहले मेटल पूछे या पानी भर के पूछे या खाली का मेटल पूछे, आपको जब भी मेटल कितना रिक्वायर्ड हुआ, मतलब सिलेंडर में जो मेटल लग रहा है ये कहां लगेगा, सर्कुलर पार्ट पे लगेगा, बॉटम सर्कुलर टॉप सर्कुलर, तो बॉटम भी पाई r स्क्वायर है तो भी पाई r स्क्वायर है, तो 2 पाई r स्क्वायर, तो ये हो गया। और लेटरल कितना होता है 2 पाई r h, तो 2 पाई r h और
2 पाई r स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2 पाई r into r plus h। ठीक है, मैंने ये r plus r 7 था, h 100 था, 107 एक साथ लिख दिया। इस तरीके से कैलकुलेशन। अब ऐसे क्वेश्चन की बेटे आप बार-बार प्रैक्टिस करो और बिल्कुल अपने टिप्स पे ले आओ। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन। A lead pencil consists of a cylinder of wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior। अरे भाई बचपन से पेंसिल देख रहे हो ना, पेंसिल कैसी होती है, सिलिंड्रिकल। उसके बीच में जो उसका गुल होता है वो ग्रेफाइट का होता है। ठीक है, ये वो भी सिलिंड्रिकल ही होता है। अब एक सिलिंड्रिकल पोर्शन के बीच में एक और सिलेंडर घुसा दिया। ठीक है, अब ये वाला पार्ट तो क्या होगा, देखो ये जो जहां देखो गुल तो ये है वर्टिकल वाला, और ये वाला पार्ट जो आपको यहाँ पाइप बॉक्स में लग रहा है, ये उसके चारों तरफ गोल गोल जो होता है वो क्या है, वो आपका वुडन पार्ट है। तो हमें अगर इस गुल को बाहर निकाल ले तो वुड का वॉल्यूम आ जाएगा, गुल को उसके अंदर फिट कर दे तो गुल और वुड का वॉल्यूम मिलकर के क्या बन जाएगा, पूरी पेंसिल का वॉल्यूम हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन है। अब इसको समझिए कि यहाँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द पेंसिल का डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो कैसे लिखेंगे बेटे सॉल्यूशन में, डायमीटर ऑफ पेंसिल कितना दे रखा बेटे, d बराबर 7 सेंटीमीटर। तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटे, रेडियस हो जाएगी आपकी पेंसिल की जो रेडियस है उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं, वो कितनी हो जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ओके, पेंसिल की। दूसरा क्या कह रहा है, एंड द डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट इज 1 mm। 1 mm का मतलब 1 mm में कितना सेंटीमीटर होता है, 10 mm बराबर 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर, सेकंड क्या है, डायमीटर ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट कितना दे रखा है, दैट इज d बराबर 1 mm। 1 mm का मतलब 1/10 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी बेटा, रेडियस तो इसकी आधी, तो 1/10 into 2 1/20 सेंटीमीटर। ये रेडियस होगी आपकी इस ग्रेफाइट की रेडियस। इफ द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ का मतलब हाइट ऑफ जो पेंसिल है h बराबर 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, लकड़ी का वॉल्यूम निकालना, एंड दैट ऑफ द ग्रेफाइट। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंड दैट ऑफ ग्रेफाइट। तो देखो भाई ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो सीधा सीधा ग्रेफाइट का रेडियस इतना दे रखा है और हाइट दे रखी सीधा सीधा, इसका वॉल्यूम तो इतना आ जाएगा। लेकिन वुड का वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो बेटे वॉल्यूम ऑफ वुड। वुड का वॉल्यूम देखो, एक बार पेंसिल का वॉल्यूम क्या होगा, पाई कैपिटल R स्क्वायर h माइनस पाई स्मॉल r स्क्वायर h। मतलब पूरी पेंसिल का वॉल्यूम इतना है और ग्रेफाइट का वॉल्यूम, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा आपका वुड का। तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटे, पाई h तो कॉमन ले ले, r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है, हाइट आपकी कितनी दे रखी 14 सेंटीमीटर है, और कैपिटल R स्क्वायर दैट इज 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर। ये कितना आ गया बेटे, इसको सॉल्व कर लोगे नहीं, बहुत इजी है। देखो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/20 का होल स्क्वायर, एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, कैलकुलेशन करना है आपको। 22/7 into 14, 7 से ये 14 2 बार कट गया, into तो एक बार 7/2 प्लस 1/20, एक बार 7/2 माइनस 1/20। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर ले सेंटीमीटर क्यूब, ये तो आपका क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वुड आ गया।
केवल ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना होगा? तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम तो सीधा इजी है बेटे, पाई स्मॉल r स्क्वायर h। तो 22/7 इनटू स्मॉल r कितना है? 1/20 इनटू 1/20 इनटू 14। तो 14 से ये 7 से 14 2 बार कट गया, तो ये आ गया 22 2 जा 44 अपॉन 400। तो 4 से ये कट गया 11 बार, तो 11 अपॉन 100 दैट इज 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम। सीधा देखो पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर देखिए वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई r स्क्वायर है, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, r की वैल्यू 1/20 इनटू 1/20 क्योंकि r स्क्वायर को दो बार लिख दिया इनटू h 14 7 से 14 2 बार कट गया, 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 अपॉन 20 इनटू 20 400। आप देखो ये 4 से क्या 100 बार कटेगा और ये ऊपर 11 बार, तो 11 अपॉन 100 का मतलब 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, so this question is very good question। चले आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक पेशेंट है इन हॉस्पिटल इज गिवन सूप डेली इन अ सिलिंड्रिकल बाउल ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर। देखो एक सिलिंड्रिकल बाउल है, ठीक है, सिलिंड्रिकल बाउल में उसको डेली सूप देते हैं, किसको? पेशेंट को, जिसका डायमीटर दे रखा है सिलिंड्रिकल बाउल का डायमीटर का मतलब ये डायमीटर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इफ द बाउल इज फिल्ड विद सूप टू अ हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर, अगर इस बाउल में जो सूप है उसकी हाइट 4 सेंटीमीटर, बाउल की हाइट कितनी हमें नहीं पता है, filled with the height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 200 पेशेंट? 250 पेशेंट को ऐसे बाउल में इतना ही सूप दिया जाता है, तो कितना सूप बनाना पड़ेगा? सबसे पहले देखो क्या दे रखा है सॉल्यूशन में, द डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल बाउल का डायमीटर कितना दे रखा है? d बराबर आपको 7 सेंटीमीटर। इंप्लाइज दैट रेडियस कितना हो जाएगा बेटे? रेडियस बराबर हो जाएगा d/2 दैट इज 7/2 सेंटीमीटर। ये उसकी रेडियस होगी, डायमीटर इतना है, रेडियस कितना है। हाइट ऑफ सूप इन सिलिंड्रिकल बाउल में हाइट की, सूप की हाइट कितनी हाइट तक भरा है? h बराबर 4 कितना है? 4 सेंटीमीटर को मैंने यहाँ 14 लिख दिया था, 4 सेंटीमीटर, तो हाइट होगी 4 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ सूप प्रोवाइडेड, ये सूप किसको मिला रहे हैं? प्रोवाइडेड टू पेशेंट, PATIENT, एक पेशेंट को पेशेंट कर दीजिए। कितना देते हैं अपन? जितना सिलिंड्रिकल वेसल्स में 4 सेंटीमीटर हाइट तक कितना ही भरते हैं, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? अरे भाई जितनी हाइट है उतना, तो पाई r स्क्वायर h, तो पाई हो गया 22/7, r हो गया आपका 7/2 इंटू 7/2 इंटू हाइट हो गया 4, तो देखो 2 4 से तो 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, तो वॉल्यूम हो गया भाई 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम मतलब इतना सूप एक पेशेंट को पिला रहे हैं। तो टोटल कितना है? हाउ मच सूप इज रिक्वायर्ड, टोटल सूप कितना चाहिए? तो टोटल सूप
या soup required, total soup required for कितने पैसे? 250 पैसे इक्वल्स टू 250 इंटू 154। भाई एक पेशेंट को 154 सेंटीमीटर क्यूब अपन क्या कर रहे हैं, सूप दे रहे, तो 250 को कितना देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। आप देखो मल्टीप्लाई करो 250 को 154 से, तो 154 को मैं क्या करूंगा, 25 से मल्टीप्लाई करके 0 लगा दूंगा ना, तो 20 5 4 जा 100 का 0 कैरी 10, 25 5 जा 125 and 10 135 का 5 कैरी 13, 25 and 13 कितना हो जाएगा 38 0, तो 38,500। तो वॉल्यूम ऑफ सूप कितना हो गया 38,500 सेंटीमीटर क्यूब। अगर लीटर में चाहिए तो वॉल्यूम बराबर क्या था 38,500 अपॉन 1000, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका 38.5 लीटर, 38.5 लीटर इतना वॉल्यूम होगा सूप का। कितने पेशेंट के लिए 250 पेशेंट के लिए। और हॉस्पिटल की जो मेस है उसमें इतने लीटर 38.5 लीटर सूप बनाएंगे, तब हर एक व्यक्ति को 154 सेंटीमीटर की लगभग मान लीजिए 150 ml की एक छोटी बोतल हम हर पेशेंट को प्रोवाइड करा सकते। फिजिकल ही देखिए इसको, अपने इनर फीलिंग से समझे कि लेट अस सपोज अगर कभी कभी हम हॉस्पिटल में जो पेशेंट होते हैं उसको कुछ बहुत से जो डोनर होते हैं वो मिल्क देते हैं, कोई सूप देते हैं, लेट अस सपोज आप ही को अगर देना पड़ गया 250 पेशेंट को, किसी दिन आपके पापा ने डिसाइड कर लिया कि आज 250 पेशेंट को मुझे 154 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से अगर मुझे सिलिंड्रिकल बोतल में भर करके सूप देना, आज मेरी इच्छा होगी, तो कितना सूप बनाओगे, इतना सूप आपको बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप 250 पेशेंट को सर्व कर पाओगे। तो डेली लाइफ में इन क्वेश्चन को उतारो, केवल ऐसा नहीं कि लैंग्वेज पढ़ ली क्वेश्चन सॉल्व कर लिया खत्म। ये सब चीजें बेटे डेली लाइफ में उतारने वाली हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बहुत स्टूडेंट धीरे से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन जब किसी स्टूडेंट का प्रिपरेशन करते हुए मैथ्स में अगर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है तो फिर नो बैक टू लुकिंग। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।